میرا نام اسلم بیگ ہے. میں ایک دفتر میں نوکری کرتا تھا. آج صبح صبح جب دفتر گیا تو جاتے ہی میری ٹیبل پر گلاب جامن اور برفی رکھی ہوئی تھی. میں بھی میٹھا کھانے کا شوقین تھا. جھٹ سے گلاب جامن اٹھائی اور منہ میں ڈال لی. سامنے کھڑا چپڑاسی مسکرا کر کہنے لگا, جناب پہلے پوچھ تو لیتے یہ مٹھائی کس چیز کی ہے. میں نے کہا, ہاں بولو. آج اختر میاں نے اپنا گھر خرید لیا ہے, اس کی خوشی میں یہ مٹھائی سب کو کھلا رہے ہیں. جیسے ہی میں نے گھر کا نام سنا تو میں ہکا بکا رہ گیا. بھلا میرے ساتھ ہی نوکری کرنے والا اس شخص نے کیسے اتنی جلدی گھر لے لیا؟ لیکن بہرحال میں نے اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے. چپڑاسی بھی ایک طنزیہ نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا. لنچ ٹائم پر ہم سبھی ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر میرا ایک دوست طنز کرتے ہوئے کہنے لگا, ارے میاں تم کب تک اپنا گھر لوگے؟ ہمارے فرینڈ سرکل میں تو سب کا ہی اپنا اپنا گھر ہے, لیکن تم اتنا کماتے ہو نہ جانے کہاں لگا دیتے ہو. ابھی تک کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہو. ایک کہنے لگا, ارے یہ تو رہتا بھی اکیلا ہے, نہ جانے اس کی رقم کہاں جاتی ہے. ہم بھی تو فیملی والے ہیں, بیوی بچے ہیں, سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور خیر سے پیسے جمع کر کے ہم نے اپنا نیا گھر بھی بنا لیا. کیا پتا یہ کن چکروں میں ہے. میں ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے دیکھا تو بے تحاشا دل برداشتہ ہو چکا تھا. آخر میں ان کو کیا جواب دیتا. خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا. جی چاہ رہا تھا کہ اپنی بے بسی پر چیخ چیخ کر رو دوں. دفتر سے چھٹی ہوئی تو باس نے مجھے بلا لیا. افسردگی کے ساتھ باس کے کیبن میں گیا تو مجھے ایک نوٹس تھما دیا. مجھے کرنٹ سا لگا, کہیں نوکری سے فارغ نہیں کر دیا. تو کام بھی ٹھیک کر رہا تھا, لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی. باس نے تو میری پروموشن کر دی تھی, اور صرف پروموشن ہی نہیں کی تھی بلکہ میرا ٹرانسفر بھی دوسرے شہر کر دیا تھا. میں تو خوشی سے پھولے نہ سمایا. باس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سارے کولیگز کو ایک الوداعی نظر ڈال کر وہاں سے نکل آیا. میں نے سب کا سانس لیا کہ دوبارہ ایسے کولیگ سے میرا واسطہ نہیں پڑے گا. یہ تو دوست کہلانے کے لائق بھی نہیں, جو بھری محفل میں بے عزت کر دیا کرتے ہیں. گھر آیا تو مکان مالک دروازے پر کھڑا تھا. کہنے لگا کہ ہاں بھیا, 2 مہینے کا کرایہ تم نے ابھی تک ادا نہیں کیا, کیا خیال ہے؟ اگلے ہی پل میں نے اس کو 2 مہینے کا کرایہ اس کے منہ پر مارا اور گھر خالی کر دیا. جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا اور بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر جانے لگا. ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیر لیا تھا. بار بار اپنے ان کولیگز کے تانے میرے ذہن میں آ رہے تھے, جو کہہ رہے تھے کہ نہ جانے یہ اپنے پیسے کہاں کرتا ہے, اپنا گھر تو بنا ہی نہ سکا. دراصل میں اپنے باپ کے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. بے بس انسان تھا. میرے ابا کو کینسر تھا. شروع میں ہمارے حالات بھی بہت اچھے تھے, لیکن ابا کو کینسر ہوا تو ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگنے لگی. لوگوں سے قرض لیے, بینک سے قرض لیے, جہاں سے بھی بن پڑی ہم نے قرض لے کر ابا کا علاج کروایا کہ ابا بچ جائیں گے. لیکن شاید ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی. ہم نے نہ صرف ابا کو کھو چکے تھے بلکہ قرضے میں بھی ڈوب چکے تھے. میری ماں تو پہلے ہی وفات پا چکی تھی. ایک ابا ہی تھے جو میرا سہارا تھے. شاید ابا کی وفات پر ہی میں چیخ چیخ کر رویا تھا. ابا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے, لیکن ان کے جانے کے بعد مجھ پر بھاری ذمہ داریاں آ گئیں. آخر کو کب تک انتظار کرتا. 2-3 مہینے بعد ہی قرضہ مانگنے والے سر پر کھڑے ہو چکے تھے, اور میں سوچتا رہ گیا کہ آخر کیا کروں. جہاں تک کہ قرضہ اتارنے کے لیے اپنا آبائی گھر تک فروخت کر دیا. کرائے کے گھر میں رہنے لگا. در در کی ٹھوکریں کھانے لگا. یہی کوشش کرتا کہ کوئی ایسا گھر ملے جس کا کرایہ بھی کم ہو, تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی تنخواہ میں سے پیسے قرضے میں اتار سکوں. اور پچھلی کئی سالوں میں بس اپنی تنخواہ سے قرضے ہی اتار رہا تھا. میں دوسرے شہر پہنچ چکا تھا. یہاں پر آنے کے بعد میں نے ایک نظر آس پاس دوڑائی. میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا تھا. ایسے میں کرائے پر نہ جانے کیسا گھر ملتا کیسا نہیں, لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی ایسی جگہ پر گھر لوں گا جہاں پر کوئی شور شرابہ نہ ہو, میل جول نہ ہو. آخر مجھے اس شہر میں ایک ایسا گھر مل ہی گیا جو کہ ایک بوڑھی خاتون کا تھا. اس نے اپنے گھر کا نچلا پورشن کرائے کے لیے خالی رکھا تھا اور اوپر والے پورشن میں خود رہتی تھی. میں نے تو شکر ادا کیا. جب میں اس بوڑھی اماں سے ملا تو مجھے کافی ضعیف دکھائی دیتی تھی. بہرحال مجھے کہنے لگی, یہ پورا حصہ ہے, 3 کمرے ہیں, لاؤنج ہے, کچن ہے, راہداریاں ہیں, ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. وہ ایک ایک چیز مجھے دکھا رہی تھی, اور میں اگلے ہی پل اس کی بات ٹوک کر کہنے لگا کہ اماں جی, مجھے پورا گھر نہیں چاہیے, آپ مجھے ایک کمرہ ہی دے دو, اور ایک کمرے کا ہی کرایہ میں آپ کو دوں گا, کیونکہ میں دفتر میں ہوتا ہوں. صبح صبح یہاں سے چلا جاتا ہوں اور رات کو صرف سونے کے لیے یہاں پر آتا ہوں. مجھے اس گھر کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کھانا بھی میں باہر ہی کھا لیا کروں گا, کچن میں بھی میرے کسی کام کا نہیں ہے. میں نے یہ بات کہی تو وہ بوڑھی عورت میرا چہرہ دیکھنے لگی, پھر کہنے لگی, میں بھی اس گھر میں اکیلی ہی رہتی ہوں, تم فکر مت کرو, میں تمہارے لیے کھانا بنا دیا کروں گی. میں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اس سے کمرے کا میں مہینے کا 4,000 روپیہ کرایہ دوں گا. وہ بوڑھی عورت سوچنے لگی, پھر کہنے لگی, اچھا ٹھیک ہے بیٹا, جتنی تمہاری جیب اجازت دے تم اتنا ہی دے دینا. میں حیران ہوا تھا, لیکن پھر سوچا کہ بوڑھی عورت بھی شاید بولی بھالی سی ہی ہے. میں نے اپنا سامان اس گھر میں شفٹ کر دیا. جیسے ہی اپنا سامان وغیرہ لگا کر وہاں پر بیٹھا تو تبھی مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی. وہ بوڑھی عورت سیڑھی اتر کر نیچے آ چکی تھی. ہاتھ میں چائے کا کپ اور بسکٹ تھے. وہ 2 کپ چائے لے کر آئی تھی, لا کر سامنے میز پر رکھ دی اور کہنے لگی کہ کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بتانا. چائے دیکھ کر میرا مزاج اچھا ہو چکا تھا. ویسے بھی میں چائے کا شوقین تھا اور تھک بھی چکا تھا, لیکن حیرت تو تب ہوئی جب وہ بوڑھی عورت میرے سامنے ہی بیٹھ کر چائے پینے لگی. مجھے بھی کہنے لگی, بیٹا چائے پیو, میرے ہاتھ کی چائے جو بھی پیتا ہے اسے پسند آتی ہے. بہرحال شاید وہ مہمان نوازی کرنا چاہتی تھی. میں نے وہ چائے کا کپ اٹھا کر پی ہی لیا. 2-3 بسکٹ بھی کھائے. سوچ ہی رہا تھا کہ اب باہر جا کر ہوٹل سے جا کر نان اور سالن لے آتا ہوں, لیکن تبھی گرم گرم کھانا وہ بوڑھی عورت میرے لیے لے آئی. یہ سب کچھ اسے کرتا دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا
कहने लगा, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मुझे इन सब की जरूरत नहीं, आप अपना खाना खुद बनाएं और खाएं, मैं होटल से मंगवा लिया करूंगा। कहने लगी, अरे बेटा, घर में लोग ही कितने हैं, एक मैं हूँ एक तुम हो, अगर मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना लिया करूंगी तो कौन सी कमी आ जाएगी। उस औरत का ही अपनापन देखकर मुझे अच्छा लगा था। पता नहीं उसके बाल बच्चे थे भी या नहीं। खैर, कुछ देर बाद वो सोने के लिए चली गई, लेकिन अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक सुनकर मैं बेहद बेमजा हुआ था। मैं तो मजीद सोना चाहता था, आखिर कौन सी कयामत टूट पड़ी थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो बूढ़ी अम्मा बाहर ही खड़ी थी। मेरे माथे पर बल पड़ चुके थे। मैं कहने लगा, क्या है, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रही हैं? कहने लगी, बेटा तुमने ऑफिस नहीं जाना, घड़ी पर वक्त देखो। साथ ही वो मेरे लिए पराठा, अंडा और चाय बनाकर भी लाई थी। कहने लगी, ये लो जल्दी से खा लो। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो सिर्फ 15 मिनट बचे थे। मैं ना जाने कैसे इतनी देर सोया रहा। मुझे उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ी में मैंने ना उनका शुक्रिया अदा किया, उल्टा उसका लाया हुआ नाश्ता करके फटाफट वहां से भाग निकला। कहीं ना कहीं मुझे उस औरत में अपनी माँ दिखाई देने लगी, लेकिन बहरहाल ये औरत तो वैसे ही मेरे साथ अपनापन दिखा रही थी। मैंने उसे रात बातों बातों में बता दिया था कि मैं सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, फिर शाम को 6 बजे तक वापस आता हूँ। जैसे ही मैं 6 बजे काम से वापस आया तो एक मरतबा फिर वो मेरे ही पोर्शन में मौजूद थी। मुझे देखकर मेरे कमरे में आ गई और फिर मुझसे ढेरों बातें करने लगी। वो मुझे अपने बारे में बताने लगी, जबकि मैं उसकी बातें सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखता था। कभी बताती कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, कभी कहती मेरे बाल जवानी में ही सफेद होना शुरू हो गए थे, फिर कहती कि ये मोटे मोटे चश्मे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि मुझे दूर से कुछ ठीक नजर नहीं आता। मैं उसकी बातें सुनकर अजीब बदमजा सा हो रहा था। जी चाह रहा था अपना दीवार में सर मार दूं। ये औरत जो अजीब ही चिपकू किस्म की थी, न जाने इसका मसला क्या था। जब मेरी बेजारी से साफ जाहिर हो रहा था कि मुझे उसके लतीफों पर भी हंसी नहीं आ रही, तो फिर क्यों मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार मैंने खुद ही तंग आकर कहा कि मुझे सुबह वापस जाना है, मुझे सोना है, आपको भी जाकर अब सोना चाहिए। मेरे इस तरह कहने पर वो कहने लगी, हाँ बेटा, दरअसल मुझे नींद नहीं आती ना, सारी सारी रात जागते हुए गुजर जाती है, इसीलिए मैं तुमसे बातें करने लगी। इतना कहकर वो वहां से जा चुकी थी, जबकि मैं उसे जाता हुआ देख रहा था और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि मुझे कहीं और ही किराए के लिए जगह देखनी पड़ेगी। ये बुढ़िया तो मेरा दिमाग ही खराब कर देगी, न जाने कहाँ कहाँ से बातें निकाल कर करती रहती है। जब मैं उसकी बातें सुनना ही नहीं चाहता तो फिर क्यों मेरा दिमाग खराब करने लगी हुई है। मैं बेहद ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। यही सोचा कि बस अब ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारूंगा, जब मुझे सोना हुआ तभी घर आऊंगा। उस रोज मैंने ऐसा ही किया। मैं सारा दिन ऑफिस में रहा, काम करने के बाद फिर दफ्तर के पास ही मौजूद पार्क में चला गया, थोड़ी देर वहां पर चहलकदमी की, फिर सामने ही फास्ट फूड के स्टॉल पर चला गया और वहीं से कुछ लेकर खा लिया। जब थकावट महसूस होने लगी तो घर चला आया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मैं ठिठक गया। वो बुढ़िया अपने पोर्शन से उतरने वाली सीढ़ियों के पास कुर्सी रखकर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। आंखें मूंदी थी, शायद सो रही थी, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज पर उसकी आंखें खुल चुकी थी। अगले ही पल कहने लगी, तुम आ गए बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? उसने खाने की ट्रे रखी हुई थी। कहने लगी, 3 मरतबा मुझे खाना गर्म करके रख चुकी हूँ कि तुम आओगे तो तुमने खाना खाना होगा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने दो टोक अंदाज में उस औरत से कह दिया, अम्मा मेरे बारे में फिक्र मत किया करो, मेरा आपसे कोई जाती ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं आपको कहा है कि आप मेरे लिए खाना तैयार करके रखा करें। मुझे बिला वजह आपके एहसानात नहीं चाहिए, बेहतर है कि मेरी फिक्र करना छोड़ दें, और वैसे भी ये खाना ऊपर ही ले जाए, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ, आइंदा मेरे लिए खाना वगैरह मत बनाइएगा। वो औरत खामोश हो चुकी थी, फिर भी कहने लगी, अच्छा ठीक है। वो फिर अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए ट्रे उठाए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थी। मैं अब अक्सर लेट घर आने लगा था, लेकिन जब भी घर आता वो बूढ़ी औरत मेरे पास आ जाती और मुझसे बातें करने लगती। मेरे लिए फिर भी खाना ले आती, कभी फल ले आती, कभी नाश्ता वही बना कर दिया करती थी, और कहीं ना कहीं मैं भी उसके नाश्ते का आदी हो चुका था। वक्त यूं ही आगे गुजरने लगा। मैंने 1-2 जगह बात ही कर ली थी, कहीं मुनासिब किराए पर घर मिले तो मैं वो ले लूं। इस बुढ़िया से तो मेरी जान छूटे, जो बिला वजह मेरी अम्मा बनने के चक्रों में है। उसकी अपनी औलाद जो उसके साथ रहती नहीं, शायद वो उसे छोड़कर ही इसीलिए गई होगी, क्योंकि ये इस कदर इंसान को पागल कर देती है। उस रोज जब मैं घर आया तो मैं भूखा था। बाहर से खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि आज मैंने सारे पैसों से अपना उधार चुका दिया था। घर आया तो मामूल के मुताबिक सामने सीढ़ियों के पास कोई भी नहीं बैठा था, कुर्सी खाली थी, और मैं कमरे में चला गया। दरवाजा भी जरा जोर से बंद किया कि अगर वो बुढ़िया अम्मा जाग रही हो तो आवाज सुनकर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। मजबूरन मुझे रात भूखा ही सोना पड़ा, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ था इस घर में रहते हुए। मुझे 3 महीने हो चुके थे। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो भूख से मेरी बुरी हालत थी, लेकिन आज नाश्ता भी नहीं आया था। शायद मेरी डांट और बेजारी वो औरत महसूस कर चुकी थी, और यही वजह थी कि वो अब मुझसे पीछे हट चुकी थी। मुझे बेचैनी सी होने लगी थी। आज दफ्तर में भी मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था। जब वापस घर आया तो भी वो बूढ़ी अम्मा मुझे नजर न आई। बार बार दिल कह रहा था मुझे बूढ़ी अम्मा से जाकर मुलाकात करनी चाहिए। अगर वो मुझे नाराज है तो मुझे उन्हें मनाना चाहिए। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। ये मैंने क्या कर दिया? झिझक महसूस कर रहा था, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी उनके पोर्शन में नहीं गया। इसके बावजूद मैंने उनको नीचे आते न देखा तो खुद उनके पोर्शन में चला गया। पूरा घर बिखरा पड़ा था, सारा सामान वहीं का वहीं पड़ा था। कमरे में गया तो वो बूढ़ी औरत फर्श पर गिरी हुई थी
उनको गिरा हुआ देखकर मैं बौखला गया। उनको सीधा किया, उनके चेहरे पर हाथ रखकर देखने लगा। कहीं की सांसें चल रही हैं या बुढ़िया कूच कर गई। पानी के छींटे मारे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वजूद बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। न जाने इनको क्या हुआ था। मैंने फौरन उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचा दिया था, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और बताया कि इनका ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी हालत हुई है और अभी अपनी कुव्वत गोयाई खो चुकी हैं। बूढ़ी अम्मा के हाथ पैर मुड़ चुके थे, वो अब कुछ भी बोल नहीं सकती थी, जबकि मैं सख्ती की कैफियत में भी उन्हें देख रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं तो बेबस हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर इनका इलाज होता रहा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने अपनी तनख्वाह का हिस्सा उन पर लगाना शुरू कर दिया। उस खातून की पेंशन भी थी जिसे वो गुजारा करती थी। मैंने इन पैसों से भी और अपनी रकम से भी खातून का भरपूर इलाज करवाया। बिल्कुल ऐसा ख्याल रखने लगा जैसे अपनी माँ का रखा करता था। मैं उन्हें नीचे के पोर्शन में ही ले आया था। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा की तबीयत कुछ बहाल होने लगी। वो कुछ बोलने लगी। उन्हें बोलता हुआ देखकर मैंने उनसे पूछा, अम्मा आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? मुझे थोड़ा बहुत उनके बारे में बताएं ताकि मैं उनको आपकी खराब तबीयत के बारे में इत्तला करूं। इस पर उस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे थे। अटकते हुए अल्फाज में उसने मुझे एक डायरी की निशानदही की थी। मैं उनके कमरे में जाकर साइड टेबल से वो डायरी निकाल चुका था। उस डायरी में जो कुछ लिखा था और जो कुछ मैंने पढ़ा, मेरा वजूद लरस चुका था। इस डायरी में औरत ने लिखा हुआ था कि मेरे 3 बेटे थे, तीनों ही मुझसे जान से प्यारे थे। मैं उन पर जान छिड़कती थी। मेरे शौहर ने उनकी किसी बात को कभी रद्द नहीं किया था, उन्हें हमेशा पलकों पर बिठा कर रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मेरे बेटे दूसरे शहरों में पढ़ाई के लिए जाने लगे तो वहीं के होकर रह गए और वहीं पर उन्होंने अपनी मनपसंद लड़कियों से रिश्ते भी चला लिए। यहाँ आए तो बच्चों की नौकरियां लग गईं। अच्छा खाते कमाते थे, लेकिन बच्चों ने ये जिद की कि हम जिन लड़कियों को पसंद करते हैं उन्हीं से शादियां करेंगे। हम भी माँ बाप थे, मजबूर हो गए और बेबस थे। जवान औलाद थी, अगर सख्ती करते तो बागी हो जाते। इसीलिए बेटों की खातिर हम उनकी पसंद की शादियां करवाने पर तैयार हो गए। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। हमारा घर कोई छोटा तो नहीं था। तीनों बेटे कुछ वक्त के लिए गुजारा कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर रहते हुए कुछ वक्त ही गुजरा था कि बहुओं में लड़ाई शुरू हो गई। पहले लड़ती और फिर अपने शौहरों को भड़काती थी और मेरे तीनों बेटे भी आपस में लड़ने लगे थे। जब तक मेरा शौहर जिंदा था, इनके मामला सुलझाता रहा। कहता भी रहा कि पैसे जोड़ो, हम बड़ा घर ले लेंगे और मिलकर वहां पर रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने शौहरों के कान भरना शुरू कर दिए थे कि हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, बल्कि हम अपना अपना घर लेंगे। शौहर भी बीवियों की ही मान चुके थे और एक वक्त वो भी आया कि तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों के साथ अलग शहरों में जाकर रहने लगे और मैं बुढ़िया इस घर में अकेली रह चुकी थी। सुना है पोते पोतियां हैं, बेटे अच्छा खाते कमाते हैं, लेकिन मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, ना ही कोई मुझसे मिलने के लिए आता है। जब मैंने तुम्हें अपने घर में देखा तो तुम में मुझे अपने बेटे का अक्स नजर आने लगा। इसीलिए मैं तुम्हारा यूं ख्याल रखा जैसे कभी मैं अपने बच्चों का रखा करती थी। उस औरत की डायरी में ये सारी बातें लिखी थी और साथ ही एक कॉन्टैक्ट नंबर की भी डायरी थी जिसमें उसके बच्चों के नंबर लिखे थे। मैंने उसके बेटों को कॉल करके उनकी माँ की खराब तबीयत के बारे में बताया था, लेकिन उन सब ने ये कह दिया हम मसरूफ हैं, जब वक्त मिलेगा तो आकर मिल जाएंगे। मुझे लगा था कि अपनी माँ की खराब तबीयत का सुनकर वो लोग भागे भागे आएंगे। मैंने बूढ़ी औरत को अपने मोबाइल स्पीकर पर डालकर आवाज सुनाई थी, लेकिन जब उसने अपने बेटों के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वो रो पड़ी। कुछ देर बाद सो गई। मुझे लगा बूढ़ी अम्मा सो चुकी, लेकिन अगली सुबह वो उठ ही ना सकी। बहुत जगह डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो बेदम हो चुकी थी। मैं अपने बाप की मौत पर बेतहाशा रोया। सोचा था कि शायद ही कभी भी ऐसा रो सकूं, लेकिन आज जब वही अम्मा वफात पा चुकी थी तो मैं यूं रोया था जैसे मेरी सगी माँ हो। मैंने अपने हाथों से तदफीन की थी। आखिरी मरतबा उसके बेटों को फिर इत्तला की, लेकिन वो उस वक्त यहाँ पर पहुंचे जब मैं उनकी माँ को कब्र में उतार चुका था। रस्मी से हाथों में मिट्टी उठाकर उन्हें अपनी माँ की कब्र पर डाल दी थी और फिर वहीं से चले गए थे। कुछ रोज बाद वो एक मरतबा फिर यहाँ आया और कहने लगे ये घर खाली कर दो, हम इस घर को बेचना चाहते हैं। लेकिन तभी कागजात में से कागज सामने आया और वकील ने भी ये वसीयत सुना दी कि ये घर वो खातून मरने से पहले मेरे नाम करके जा चुकी हैं। मैं तो जितना हैरान होता उतना कम था। आज तक मैं कभी अपना घर ले नहीं पाया था, अभी तक कर्जे ही उतार रहा था, और ये खातून सिर्फ चंद रोज की नेकी के बदले अपना इतना बड़ा घर मेरे नाम करके जा चुकी थी। शायद मेरी कोई न कोई नेकी काम आ गई थी, वरना इतना बड़ा घर इतनी आसानी से मिलना मुश्किल था। कुछ अरसे बाद मैंने अपने तमाम दफातर के दोस्तों को घर पर बुलाया तो सभी लोग मेरा घर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अब उसको मैंने काफी ज्यादा डिमोलिश कर दिया था। दीवारों पर कीमती किस्म के पर्दे आवेजा थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास अब खासे पैसे जमा हो चुके थे। आस पड़ोस की औरतें अब मुझ पर नजरें जमाए बैठी थी। फिर एक दिन एक औरत मेरे लिए रिश्ता लेकर आई। मैंने तस्वीर देखी तो पहली ही नजर में वो मेरे दिल में उतर गई। उसका नाम मलीहा था। अब मैं बेसब्री से दिन गिनने लगा, कब वो दिन आएगा। और फिर काफी इंतजार के बाद वो दिन भी आ गया जब मलीहा दुल्हन बनकर मेरे घर आई। चंद ही रोज में मेरा घर जन्नत बन चुका था।